go. All right. Good morning. Good morning. Good morning. I'm very excited to be back. Sorry, last 3-4 days I was not well, but all that happens. And as Yunus was telling me, I'm very, very young because I slept at 5:30 a.m. in the morning. Feels very, very good. Uh, so as you can see my slides and all that, right? Everything is working fine. You can hear me properly. You can see me. Somebody confirm, please. Yes, indeed, we can hear you. Good, great, good, great, great, great. So as you can see from the title of the first slide, we are looking at what is ITSM part 2. Before just a minute, let me admit. All right. So we are looking at the topic for today is ITSM part 2. And before we really get into, and it's going to get a little bit heavier today. So before we get into the heavy things, let me do a recap. And before doing a recap, let me ask something fundamental to everybody else. And you all joined this class to learn ServiceNow. And this is the third lecture that we are talking about ITSM. तो यार ये ServiceNow कब आएगा और ये ITSM क्यों सीख रहे हैं? तो for that, last night, just before I went to bed, I was thinking of this. If a student asks me this question, तो मैं क्या आंसर करूंगा? तो मैं एक सिनेरियो इमेजिन करने को बोलता हूँ. Okay, suppose this is you, right? And you are going to get employed or get a job as a technician in a company that makes medical equipment. Okay, so far, just I'll keep repeating. This is you. You are going to get a job in a company that makes medical equipment. Now, the job that you're going to get initially is a technician. So this person is supposed to install, supposed to do other things also, but supposed to install those machines in a hospital. यहाँ तक बात समझ में आई? Somebody is going to become a technician who's going to install a particular machine in hospitals. That's going to be the job. Now, there are two approaches to training this person. Okay. One approach to training this person is you only train what is needed. Let me call it need to know. Right? Need to know basis. कौन सा तार कहाँ खींचना है, कौन सा पाइप कहाँ लगाना है, किधर कौन सा प्लग लगाना है, कौन सा स्विच का पोजीशन ऑन, क्या चीज नीचे, क्या चीज ऊपर, इतना ही सिखाना है इस पर्सन को. ये ट्रेनिंग अप्रोच 1 हो गया. और ट्रेनिंग अप्रोच 2 में नीड टू नो तो है ही, ये तो बताना है. इंस्टॉलेशन प्रॉपरली होना है तो इंस्टॉलेशन की सारी चीजें बतानी है, लेवलिंग कैसे करना है, कौन सा तार कहाँ खींचना है, सब सिखाना है. बट इसके साथ ये भी सिखाना है कि भैया ये एक्सरे मशीन है या एमआरआई है या डायलिसिस मशीन है या क्या है. अगर ये एमआरआई मशीन है तो एमआरआई मशीन क्या होता है, उसको क्यों यूज करते हैं, उसके फायदे क्या है, उसमें प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये 2 ट्रेनिंग अप्रोचेस हैं. And just to get your engines started, I know all of you have an early morning. मैं तो चालू हो जाता हूँ because I love teaching. बहुत excited हो जाता हूँ मैं. तो let me ask again, आसिम, ए से नाम चालू होता है. क्वेश्चन समझ में आया अभी तक मैं क्या पूछ रहा हूँ? आसिम, if you can explain the question again to your classmates. क्या पूछ रहा हूँ मैं? आसिम 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 come in, आसिम come in. आसिम आसिम आसिम. I think he's speaking on mute. So you're on mute. आसिम आप हो? ओके. लास्ट टाइम भी स्किप करना पड़ा था. आसिम, आई विल टॉक टू यू सेपरेटली ऑफलाइन. ऐसे मत किया करो. प्लीज डू पार्टिसिपेट इन द क्लास. बट लेट मी गो टू आयन. Ayan, if you can, if you understood the question, can you
Or scenario, can you explain the scenario to your classmates, please? No, I didn't get the question. Okay. सुना Uh, नहीं। ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ, या किसी और को समझा होगा तो कोई समझाएगा? लेट मी चेक विद फातिमा। नो? पूजा? Hi. First scenario is we have to like this is me and I have to install medical equipment हम्म in a hospital. हम्म First one is need to know हम्म just जो हमको चाहिए, हमको जो इंस्टॉल करना है बस उसके बारे में ही नॉलेज चाहिए. और सेकेंड वन है उसके साथ साथ और भी चीजों के बारे में नॉलेज की, ये एमआरआई कैसे काम करता है या और इक्विपमेंट्स. मान लीजिए एमआरआई मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एमआरआई क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या फायदे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. Information, right? So thank you very much, that's the scenario. So let's go to uh, शाहरुख. शाहरुख, कौन सा सिनेरियो, हर दोनों दोनों सिनेरियो के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है. तो पहला वाला जो सिनेरियो है जहां पे खाली नीड टू नो है, राइट, आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, आप एक्सरे मशीन इंस्टॉल कर रहे हो या एमआरआई मशीन इंस्टॉल कर रहे हो या जो भी इंस्टॉल कर रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है, खाली आपको इंस्टॉल कैसे करना है इतना सीखना है. इस अप्रोच के कोई एक फायदा बताइए मुझे. हर एक अप्रोच के फायदा भी है, नुकसान भी है. इस अप्रोच का क्या फायदा हो सकता है, शाहरुख? His mic is not working. He texted just now, Shahrukh. Okay, no problem. Shubham? For the first approach, the technician would not be aware about the overall functionality, Sure, yeah. but he can means set up the machines Yeah. with his knowledge. But in second scenario, No, wait. he would My question was, तो पहला अप्रोच आपने बराबर समझा है, तो पहले अप्रोच का फायदा क्या होगा? he would be able to set up the machines more efficiently. How? He has only knowledge about how to set up that particular machines. So how does it become more efficient? He means he don't have to think much about means. नहीं यार, नहीं, ये फायदा तो नहीं हुआ. हाँ. फायदा तो नहीं हुआ. फायदा क्या हो, कैसे होगा, क्या होगा बताओ. फायदा जरूर होगा, हर दोनों अप्रोच के फायदे हैं, दोनों अप्रोच के नुकसान है. वन मोर ट्राई. Okay, keep thinking. जस्ट अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज टू इंजन चालू करने के लिए. तन्मय, क्या फायदा हो सकता है कि किसी बंदे को खाली उतना ही पार्ट सिखाए जितना उसको जरूरत है, राइट? कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट किया है, ऑन ऑफ, दैट्स ऑल. एमआरआई क्या होता है वो सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है. इस अप्रोच का फायदा क्या है? ये मत बोलना कि कोई फायदा है ही नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि एक फायदा है. हर एक का एक एक फायदा, एक एक नुकसान है. ओके. I'm still thinking over it. Okay, let me go to Ayan. Go ahead, Ayan. So on the hospitals part, they don't have to allot so much time and resources to training him about everything. Lovely, Yeah. lovely. Ayan, beautiful, right? ट्रेनिंग में टाइम कम लगेगा ना, ऑब्वियसली. उसको खाली वो टेक्नीशियन को बताना है क्या क्या कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है, बस उतना ही बताना है, वो सब बाकी ज्ञान की जरूरत नहीं है. सो ट्रेनिंग में टाइम कम लगेगा, नो प्रॉब्लम. सो ऑटोमेटिकली इफ आई कम टू दी सेकंड अप्रोच, कि जहाँ ये सब बेसिक्स, मतलब बेसिक्स नहीं, जो एक्चुअल जॉब करना है उस टेक्नीशियन को वो तो सिखा ही रहे हैं, प्लस उसके साथ एक और सिखा रहे हैं कि एमआरआई क्या है क्या नहीं वगैरह वगैरह, वो भी सिखा रहे हैं. ऑब्वियसली उसका डिसएडवांटेज है कि ट्रेनिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, बट इसका क्या फायदा हो सकता है कि आप ये भी चीज सिखा रहे हो. नाउ बिफोर आंसरिंग, डोंट थिंक अबाउट
hospital technicians and MRI. Now think about yourself, right? All you people who have joined this course, who are going to be ServiceNow system administrators in the future, and ServiceNow system administration कैसे करना है, यानी ServiceNow कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सी चीज कहाँ कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, खाली इतना सिखाने के बजाय हम लोग आपको ये भी सिखा रहे हैं कि ServiceNow होता क्या है, ITSM होता क्या है, ITSM का इंपॉर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। ये ध्यान में रखते हुए नाउ यू टेल मी द आंसर कि इसका फायदा क्या हो सकता है। नुकसान तो ऑब्वियसली यही है कि ट्रेनिंग में टाइम ज्यादा लगेगा भाई। फायदा क्या हो सकता है? नाउ लेट instead of me coming to different people, let me see hands. Any volunteers? फायदा क्या हो सकता है? नुकसान तो मैंने बता दिया। कोई तो हाथ ऊपर करो, सबको बचा लो, नहीं तो मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एटलीस्ट, कि अगर आप लोगों को नहीं समझेगा कि इस अप्रोच का फायदा क्या है, तो हम लोग जो 2 दिन से कर रहे हैं, आप और हम, ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना। Unless you are all convinced that yes, there is a benefit in learning ITSM first. So that's why I wanted to get this message across to you. Shahrukh says ट्रबल शूट कर सकता है, दूसरा सेकंड वन। गुड, आई लाइक दैट। ट्रबल शूट कर सकता है, यस, वेरी वेरी गुड। बट ये यू आर इन द राइट ट्रैक शाहरुख, बट ये छोटा छोटा एंगल हो गया, थोड़ा बड़ा सोचो। ट्रबल शूट कर सकता है तो क्या? लाइक हायर अंडरस्टैंडिंग रहेगा अरे तो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मेरे को बताओ। तन्मय तन्मय तन्मय, हाँ बोलो। यस, तो हायर हायर अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। ओके, ट्रबल शूट कर सॉल्व दैट सकता प्रॉब्लम। है, वेरी गुड। ट्रबल शूट कर सकता है, एफिशिएंटली ज्यादा काम कर सकता है, आई एग्री। और अगर कोई डिसएग्री करता हो तो बोलो चैट में, या बोलो कि यार अयान क्या बकवास कर रहा है, संजीत क्या बकवास कर रहा है। ओके, बट सो फार 2 पॉइंट्स जो आए हैं, आई एग्री विद देम। बट अगेन आई एम सेइंग ये छोटे पॉइंट्स है, थोड़ा बड़ा सोचो। ये दोनों करेक्ट पॉइंट्स है। एनीथिंग बिग, बड़ा मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो। लेट्स गेट वन फीमेल आंसर फ्रॉम वन फीमेल, नहीं तो मैं किसी फीमेल के पास आऊंगा। प्रतिमा, पूजा, और कौन है? 2 ही है। फतिमा, पूजा, आप में से थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो। ये सेम ट्रैक, द पर्सन विल बी मोर एफिशिएंट, द पर्सन कैन ट्रबल शूट एंड वैट कंपनी की कॉस्ट सेव होगी, कंपनी की कॉस्ट सेव होगी, होगी, यस, मिस्टेक्स कम होंगी, एफिशिएंटली काम होगा, कंपनी की कॉस्ट सेव होगी। ठीक है, तो मैं एक क्लू देता हूं। तो टेक्नीशियन के करियर का क्या होगा? Okay, so let anybody wants to attempt? Fatima, आपने, I haven't heard you. He Yeah, sorry, who's? he might switch up to the Very good, very good. second. Who's speaking? Shubham. Shubham, yes. So did I understand? Sorry, tell me again. What did you say? He might switch up from first job profile to the second one. Very good. Not first job profile to the second job profile. ये 2 जो थे वो ट्रेनिंग अप्रोचेस थे। Okay. But जो सेकंड अप्रोच से ट्रेन हुआ है, दैट पर्सन विल राइज अप फास्टर। हमारा नाम क्या है? राइज अप है हमारा नाम, राइट? जिंदगी भर आपको एडमिन रहना है क्या? why are you getting trained for ServiceNow admin? Because that is the first step.
बट जिंदगी भर आपको फर्स्ट स्टेप पे ही रहना है क्या? नहीं ना, right? You want to become developer, you want to become implementer, you want to become business analyst, you want to become architect, you want to become whatever, right? You want to become uh, husband, wife, father, everything, right? So that is the reason. If you don't understand and learn the fundamentals, what is ITSM, ये क्यों कर रहे हैं सर्विस नाउ, क्या है, then ये नहीं सीखोगे तो इससे आपको फर्स्ट जॉब मिलने में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, right? But your performance on the job will be different from day one if you understand the fundamentals, and that way you will rise up faster. Okay, this was my morning coffee for all of you guys. I hope all of you are awake. I'll take maybe 30 seconds pause for our other Master Ji to come in and maybe give his views on this one, Ashfaq, or Yunus, our third Master Ji, or our fourth Master Ni, Pooja, who's going to teach you Japanese. Any comments from you guys? Then we will jump into what is ITSM part 2. Take it away. Yes, so Sanjit, I think this is very much important, correct? So, and I and you have been discussing on this topic, and why basically we have announced Yunus as basically our trainer for ServiceNow. He's expert in basically ServiceNow. But we are expert in ITSM, and we have been working in the industry for the last 20-25 years, more than that, correct? Sorry, Ashfaq, let me interrupt. Ashfaq, you and I are experts in making people rise up. This is what we've done in our whole careers. I'll tell you stories about Ashfaq later on in the lecture. Go ahead. So that's what we've been doing. So and ITSM is very much needed. That's a fundamental, and this is not only used for ServiceNow. This is across industry. And when you are going to learn ITSM, okay, you are going to use that knowledge across the industry, irrespective of domain, irrespective of domain. Unfortunately, in IT industry as well, there is a lack of knowledge in this area. Okay, Sanjit, I'm just going to give some GAN around why ITSM is important, rather than putting any specific around ITSM at this moment. Absolutely. So, yeah, and this is very much important. Why? Because in day-to-day life, I've given some of the example in the past as well. It is you have been using it, but knowingly, unknowingly, you don't know how we are using this. I've given some of the examples: installation request for Tata Sky. If your basically broadband connection is broken, then you're calling somebody. That itself is an incident. So there are some of the examples given, but those are basically examples we have been living with, correct? Yeah. And in day-to-day life, we have been using it. Day-to-day life, we have been kind of living with ITSM, but we are unaware about that we have been using it, unfortunately. Anyway, so for ServiceNow, why it is important? Because ServiceNow is basically ITSM tool, correct? They have expanded their business. That's a separate story, and they are going to graduate towards ERP at the end. That's the long-term plan for them, correct? But just to make sure that your fundamentals or basics are very clear and you are kind of understood those. Means अगर मैं in simple words बोलूँगा, नींद में से भी अगर किसको उठा के पूछोगे, tell me what is incident, tell me what is request management, service catalog management, tell me what is change management, tell me what is problem management. So anybody in this class should come and say that this is what is incident management, this is what is a change management. With some examples, you can quote that. I don't know, these are the examples and how these are used in real world. So that's our intention basically. And I and Sanjit is guru in that area, and that is what is going to benefit you guys. Rather than theoretically, we can say that go through this book, go through this video, that video, okay, but that will not help you understand, because many of the times we lose the track.
Anyway, Sanjay, sorry, I'm not going to take much of time, and I think we can. And I think it is very much clear to all basically members, participants in this class that our experience, why we are teaching this. But just wanted to reiterate the benefits of ITSM, and I think you've kind of kickstart the discussion, which is really helping. We have to see how participants are engaging in this class. What are the gaps? What are the challenges? See, guys, another one thing I just wanted to mention you over here. If you are not able to understand, or if you are not able to get whatever have been taught to you, just open up. We are not going to question anyone that why you don't know this. If you are not able to basically learn something out of the whole discussion, then you should come up with your queries, come up with your questions. Tell upfront that these are the areas which I still need some guidance from you. So we can have one-on-one session if in this case, I am Sanjita ready to help you in all our capacity, correct? Just to make sure that you haven't understood that particular topic, correct? If in case there are larger participants who are basically who need some level of support, I think we are ready to redo or repeat our session for that particular area. Over to you, Sanjay. Thanks. So before I dive in into ITSM part 2, any quick words from Yunus, Pooja? Both of you are also trainers. Hey, hi everyone. Sanjay, it will help you to grow in your career. It will give you more opportunities when you have multi skills. Just not to stick to the admin parts. I will suggest to learn the new skills, because every industry they want multi-skiller person who doesn't have the only a particular skill pe knowledge nahi hai. He has a multi-skiller, so it will give you more opportunities as well to grow in his career and other projects, because service now, as Ashfaq mentioned, that ki bahut sari skills or bahut sari other modules par kaam ho raha hai service now mein. They are coming up with the new modules and everything. If you have knowledge with the new modules as well so it will give you an opportunity. You are not stick to the only ITSM. There are few modules like HRSD, CSM, as I said. यहाँ पर हम अभी admin की training दे रहे हैं. If you are just an admin, if you have just knowledge of admin part, so when any opportunity comes under the ITSM part, the person who has knowledge in ITSM, what is incident, problem, change, request management, all these modules जिसको knowledge है, he will get that opportunity, right, to grow in his career. He will come under his manager eyes कि वो एक नजर में आता है. He will इसकी opportunity बढ़ेगी. He will get promotions and appraisal, on site opportunity कि he has multi knowledge. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ऑन साइट पे भी जा सकते हैं. एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दोज पर्सन हु हैज मल्टी स्किल नॉलेज. So these are very helpful ki ITSM, the way Sanjit is teaching and the Ashfaq and both the way are taking this ITSM part. It is wonderful to know the person who is just right, I mean coming to the IT sector ki abhi IT mein aana hai. To ye sari cheezein, it's a basic actually. If you tell me about the ITSM, ye basic hai. Service now या any other कोई भी skills या टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ITSM का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इफ यू डोंट हैव ITSM नॉलेज, अगर आपको एडमिन का नॉलेज है, if you go with the job description on any other portal as well like Naukri or LinkedIn, फर्स्ट जो होता है प्रायोरिटी उसमें जेडी में कि ही शुड हैव नॉलेज ऑफ ITSM का नॉलेज होना और अच्छा होना. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क ऑन द ITSM पार्ट्स. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो this module we should have a good knowledge on this. So the way Sanjit and Ashfaq taking care of the ITSM part, it will really help you in the future of the upcoming sessions of service now. Thanks Yunus. Yeah. Pooja, something from you quickly. Well, everything has been said, but as you all are saying, basic knowledge is very important. Like prior to this class or these lectures, I was not aware of the terminology, especially the basic how things work or what is an incident or what is SLA
and the workflow and all. But now I know how things work in IT industry or for this particular section. Thanks, thanks, Pooja. And to you, I want to say something, and it is not only to you, but for other people also. कि जब आप एक आईटी इंडस्ट्री में आते हो, तो आईटी इंडस्ट्री बाहर से आपको एक मोनोलिथ की तरह नजर आती है कि बस ये एक ही चीज है. जब आप अंदर आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे इसमें मार्केटिंग भी है, इसमें सेल्स भी है, इसमें बिजनेस एनालिस्ट भी है, इसमें टेस्टिंग भी है, इसमें बहुत कुछ है. तो जरूरी नहीं है कि आप एडमिन होके अंदर आए हो तो आप एडमिन ही रहो. मान लीजिए आप में से 5 लोगों को एडमिन का काम पसंद ही ना आए, ओके, तो फिर आप क्या करोगे? इफ यू नो ITSM. सो पूजा, why I picked on you, because about 2 months back we were going for a meeting, three of my colleagues, me and couple of my colleagues, and we were meeting a Japanese customer, and along with us we had a lady who's a Japanese N1 certified, right? तो वो 3 घंटे के ड्राइव में फ्रॉम पुणे टू मुंबई हमने उसको कन्विंस कर दिया कि अरे भाई तू सर्विस नाउ सीख ले, एंड सडनली यू विल बिकम सर्विस नाउ बिजनेस एनालिस्ट, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अनदर बेनिफिट. इफ यू नो द फंडामेंटल्स, आपका स्कोप बढ़ जाता है, आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं. ठीक है एवरीवन, लेट्स मूव. बहुत सारा हो गया मॉर्निंग कॉफी. एनी कमेंट्स फ्रॉम participants? Is everybody convinced कि ITSM सीखना बहुत जरूरी है? हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो जाए, पर इसका बहुत फायदा होगा. Is everybody with me? Just show me hands, please. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yes. Good. Thank you. All right, let's get into ITSM part 2. Let's quickly recap. मैंने टाइटल दे दिया है recap, but I'm aware उसमें से सब कुछ हमने कवर नहीं किया है. Okay. सबसे पहला है चेंज मैनेजमेंट. नाउ दिस इज, मैं वीडियो ऑन कर देता हूं, 1 मिनट. ओके, सो दिस चेंज मैनेजमेंट, दिस इज अ यू नो डिफरेंस इन रिप्रेजेंटेशन. मैंने पहले लेक्चर में जो कहा था, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज. चेंज लास्ट में आता है, बट इफ यू लुक एट मेनी ITSM डायग्राम्स, इट स्टार्ट्स विथ चेंज, एंड वो पूरा साइकिल होता है. चेंज से चालू होगा, उसके बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर इंसिडेंट आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर ऐसे आएगा, और वापस करके चेंज आ जाएगा. ये पूरा साइकिल में मेनी पीपल लाइक टू रिप्रेजेंट. What did I talk about in the first lecture? We started with incident. इंसिडेंट के बाद हमने कौन सी बात की डायरेक्टली फर्स्ट लेक्चर में? प्रॉब्लम. प्रॉब्लम के बाद डायरेक्टली किस चीज पे जंप हो गए हम लोग? चेंज. राइट? तो ये डायग्राम में आप देखो कि बीच बीच के स्टेप्स भी बहुत सारे हैं. वी विल कवर देम. तो ITSM इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, और 1-2 लेक्चर लगेंगे ITSM होने के लिए. ठीक है, तो चेंज मैनेज, आज का मेन फोकस जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज चेंज मैनेजमेंट, बट आई विल कम टू इट अ लिटिल बिट लेटर. एक रिकैप क्विकली कर लेते हैं. we'll just mention their names right now. I will give this as an assignment कि ये सारे जो phases हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आओ, थोड़ा वीडियो देख के आओ. Today mainly we'll talk about change management, but just to let you know कि खाली इंसिडेंट प्रॉब्लम चेंज नहीं है, दूसरी चीजें भी हैं. सो ये अवेयरनेस आपके पास आ जाए, इसके बाद पहले आप थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर के पहले थोड़ा आप प्री रीड कर लो, एंड देन वी विल कम टू इट. ठीक है, सो रिलीज मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट में थोड़ा बात किया था हमने, अशफाक ने थोड़ा बात किया था, राइट? प्रॉब्लम मैनेजमेंट में तो काफी बात किया था, राइट? इंसिडेंट मैनेजमेंट में वी हैड सेड इंसिडेंट कैसे लॉग होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बार बार आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम बोला जाता है, प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस होता है. ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस की थी. ये सारी टर्म्स को फ्लैग किए हुए मैंने वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाल दिया है. कौन से टाइम स्टैम्प पे कौन सा टॉपिक कवर हुआ है वो भी मैं अभी चैट में डाल दूंगा, तो यू कैन क्विकली गो एंड रिवाइज. एंड ऐसा जरूरी नहीं है, इनफैक्ट आई एनकरेज यू टू लुक एट अदर वीडियोस आल्सो.
because everybody, all of you have a different learning style. किसी को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगेगा, किसी को अशफाक का तरीका ज्यादा पसंद आएगा, किसी को कोई और तीसरा तरीका ज्यादा पसंद आएगा. इसमें YouTube में भर भर के वीडियोस हैं. आई रियली एनकरेज यू टू टेक अ लुक एट दैट. उसके बाद we had talked about request management also. सर्विस लेवल मैनेजमेंट पे भी काफी बात हुई थी हमारी, बट विल कम टू, आई हैव अ सेक्शन टुडे ऑन सर्विस लेवल मैनेजमेंट पे थोड़ा डीप डाइव करेंगे. एंड देन workflow and all of that, we had thought, basically we had said that ServiceNow is a workflow tool. Remember that. It keeps with the theme of what I have been saying, that you get in as a ServiceNow administrator, and because you are working on a workflow tool हर जगह चाहिए. Okay, it gives you, आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं if you keep in mind कि बॉस घूम फिर के तो ये है तो वर्कफ्लो ठीक है. और उसके बाद घूम फिर के वापस हम चेंज मैनेजमेंट पे आ जाते हैं. चेंज मैनेजमेंट कब करते हैं? लास्ट टाइम का किसी को याद है चेंज मैनेजमेंट कब करते हैं? किसी को याद है? कोई तो हाथ ऊपर कर लो. If they want to fix something that is broken. करेक्ट. प्रॉब्लम का जो रूट कॉज एनालिसिस निकल के आएगा, तो उसको फिक्स करने के लिए यू विल हैव टू डू अ चेंज, बट वी विल कम टू दैट. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. मैंने कहा था कि एसएलए के बारे में थोड़ा डीप डाइव करेंगे, तो खाली एसएलए ही नहीं, कुछ और चीजों के बारे में लेट्स टेक अ कॉन्सेप्चुअल लुक. एंड माय फिलोसफी और माय आइडिया ऑफ टीचिंग इज वही चीज 2-3-4 बार रिपीट करना पड़ेगा, बट इन different ways, different level of detail, तब जाके it becomes second nature to my students. So some of you might have got it in the first try, some of you might have gone ahead, very very good. Please आगे चलते जाइए, मेरे लिए रुकिए मत. But to get everybody familiar with the subject, right, we need to repeat some of those things. But one thing I can promise, two things I'll promise you, I'll keep repeating, but I will repeat it in different ways. Or if I don't have a different way of repeating it, I will ask Ashfaq to repeat it. I will ask Yunus to repeat it. I will ask Pooja to repeat it. एक mystery बना रहा हूँ मैं पूजा के बारे में. I'll come to that in a minute. But let's talk about ITSM metrics. हम लोग IT इंडस्ट्री में बहुत सालों से है, तो हमारे जबान पे कुछ वर्ड्स बैठ गए हैं. रिसोर्स, metrics, and when I realize when I'm talking to non-IT people, रिसोर्स मतलब उनके लिए कुछ और होता है, मेट्रिक्स का मतलब शायद उनके लिए कुछ नहीं होता है. राइट. सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ दैट. राइट. जिसका मैंने अभी तक आवाज सुना ही नहीं है, उससे मैं देखता हूं. फतिमा मैडम, मेट्रिक क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय द वर्ड मेट्रिक? आई हैवंट हर्ड योर वॉइस एट ऑल येट और इन चैट. एंड असीम, फतिमा, असीम, मेट्रिक क्या होता है? हेलो 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 हेलो. Don't know, that is fine. I don't expect you to know. Okay, don't worry about it. You all are people who are young, people who are at the entry level, right? आपसे रिजल्ट की अपेक्षा नहीं है, आपसे खाली एक ही अपेक्षा है, एफर्ट. Right? You put in your efforts, the results will come. Fatima, if you don't know, it is all right, but keep putting in the effort. आंसर देते रहो. गलत हो, I don't know हो, चलेगा. Thank you for giving the answer. Thank you for speaking up. आसिम, अभी तक आपने एक भी आंसर नहीं दिया है. Okay, आंसर ने आसिम कह रहा है 2 minutes. I'll. Metric means to measure. Samruddhi, very good. Thank you. Shahrukh says metric means standard. Very good. Asim, are you going to add something in chat? Or Asim says metric means system. Asim, I don't understand how. What do you mean system? आप माइक पे बोलोगे जरा कि आप सिस्टम क्यों बोल रहे हो, क्या मतलब है आपका?
बट वेरी गुड, थैंक यू फॉर ओपनिंग, थैंक यू फॉर सेइंग समथिंग. आप अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे. सही हो गलत हो डजंट मेक अ डिफरेंस. वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू गाइस येट. Effort is what we expect, both of you, both of us. Okay. And just Sandeep, so guys, if you're wrong, nobody is going to basically test your capability. So if you're learning, means you're learning. Just keep in mind. If you're wrong, that's okay. We will basically brush those topics once again wherever we see a challenge or wherever see a gap, correct? Because we are here to help you guys, not to basically point out your mistake. Just keep in mind, आपकी गलतियां निकालने के लिए हम यहाँ पे बैठे नहीं है. We are here to teach you and we'll do that our job, correct? Thanks, sir. Thanks. Yeah. As I said, what I expect from my students is not correct answers. I don't expect it from my students. What I expect is effort. गलत आंसर हुआ तो कोई आपको मारेगा नहीं. एफर्ट नहीं हुआ तो अगर आप मेरे बगल में रहते हो मैं घर में आके मारूंगा. ठीक है? All right. And many of you are actually Ashfaq's friends, family friends and all that. तो अशफाक को मालूम है आप कहाँ रहते हो, घर में आके मारेगा. Anyway. ठीक है. So metrics, the way we use the word in the IT industry is of course related to measurements, but वो कौन सी चीजें होती हैं जिसको हम मेजर करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम हमारी गाड़ी सही डायरेक्शन में, सही दिशा में हमारी जर्नी हो रही है. तो जैसे अगर मैं कार में बैठ के निकला और मुझे पुणे से जाना है मुंबई, तो ये जर्नी सही दिशा में जा रही है, सही तरीके से जा रही है, तो मैं कुछ कुछ चीजों पे नजर रखूंगा, कुछ कुछ चीजों को मेजर करूंगा. जिन चीजों को मैं मेजर करूंगा ये देखने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, उन चीजों को कहते हैं मेट्रिक्स. कैन आई हैव 1 or 2 एग्जांपल्स कि भाई कार चलाते समय, ड्राइव करते समय फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी किन किन चीजों पे नजर रखते हैं? 1 or 2 क्विकली. Distance covered. Distance covered, very good. Steering Speed. sorry, शाहरुख said steering पे नजर रखते हैं. Steering पे नजर नहीं रखते हैं मेरे ख्याल से. Just think about a little bit more. There is something related to steering जिस पे नजर रखी जाती है. Fuel tank. Fuel level पे नजर रखते हो, very good. Speed पे नजर रखते हो, very good. Mirror पे नजर रखते हो, very good. But mirror is not a metric. Mirror में आपको क्या नजर आता है? That is the metric. Rear visibility. वेरी गुड. वही क्वेश्चन शाहरुख के लिए है. स्टीयरिंग पे नजर नहीं रखते हो, स्टीयरिंग से क्या होता है उस पे नजर रखते हो. व्हाट इज दैट शाहरुख? कंट्रोल. ओके. व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग शाहरुख वाज डायरेक्शन. भैया हमको मुंबई जाना है तो साउथ जाना है, हम कहीं नॉर्थ तो नहीं जा रहे, ईस्ट तो नहीं जा रहे, राइट? सही स्पीड पे जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, हमको 3 घंटे में पहुंच के फ्लाइट पकड़नी है. तो ये सारी चीजों पे हम नजर रखते हैं. ये सारी चीजों पे जो हम नजर रखते हैं, these are called matrices in strictly technically British English, but हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में उसको मैट्रिक्स ही कहते हैं. ओके. मेट्रिक इज वन मेजर, मैट्राइसिस इज मल्टीपल मेजर्स, बट आईटी इंडस्ट्री में कोई मैट्राइसिस नहीं कहता, वो मैथ्स में उसको मैट्राइसिस कहते हैं. ऑल गुड, एवरीबॉडी इज विथ मी. व्हाट इज मैट्रिक्स? Yes. यस, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. तो कुछ कुछ चीजें हैं ITSM के बारे में. ITSM आप कर रहे हो, आपने $1 million खर्च करके ये टूल भी लगा लिया, आपने ये मेरी पूरी जो क्लास है उन सबको भी हायर कर लिया अच्छे अच्छे सैलरी पे. तो मालूम कैसे पड़ेगा कि यार ये ऑपरेशन अपना सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल मेजर. ओके. अगेन, the idea in my teaching style is I am only making you aware of the details. I have spent maybe 10 minutes explaining you the concept of metrics. The detail is not something that I'm going to explain unless you ask me. If you ask me, मैं 5 घंटा समझाऊंगा.
If you don't ask me, I'm not going to explain. So this is again part of your homework. Go through all of these metrics, understand it, but don't worry कि बस ये हो गया तो हो गया. We will come back to this, as I said, repeat again and again, अलग अलग तरीके से, अलग अलग context में. But this is what I wanted to first incept in your mind कि हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, हम कुछ गाड़ी चला रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, वो ठीक चल रही है नहीं चल रही है, उसके बारे में हम लोग स्पीडोमीटर देखते हैं, ओडोमीटर देखते हैं, फ्यूल लेवल देखते हैं, वोल्टेज देखते हैं, ऑयल प्रेशर देखते हैं. वैसे ही ITSM के बारे में देखने की ये सारी चीजें हैं. राइट, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द लिस्ट वंस. अगर आपको बहुत ही ज्यादा किसी पे क्यूरियोसिटी होगी, प्लीज रेज अप योर हैंड एंड से नहीं 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 नहीं, अगले टॉपिक पे जाने के बारे के पहले इसके बारे में प्लीज बता दो. एंड द सेम गोज फॉर यू अशफाक एंड यूनुस, की अगर आपको लगे कि नहीं कोई चीज इसमें से अभी बात करनी है तो फील फ्री. बट अदरवाइज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू टुडे आई एम गोइंग टू लीव इट जस्ट एट द लिस्ट. सर्विस अवेलेबिलिटी, टाइम टू रेजोल्यूशन, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन रेट, एजेंट प्रोडक्टिविटी. मेरा तो मन कर रहा है हर एक पे 2-2 घंटे का लेक्चर दे दूं. SLA ब्रीच रेट, यूजर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नेट प्रोमोटर स्कोर. यूजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नेट प्रोमोटर स्कोर, ये शायद किसी ने ज्यादा नहीं सुने होंगे. ये मेरे फेवरेट मैट्रिक्स है. मैं तो कहता हूं कि बाकी सब गया तेल लेने, ये दो है, यूजर सेटिस्फैक्शन और नेट प्रोमोटर स्कोर. ये सही है तो सब ठीक है. ओके, anybody in the audience, including Pooja, Ashfaq, Yunus, and classmates, do you want me to talk about anything right now? या आगे बढ़े? Sanjit, let's move one metric to be added, if I'm not wrong. That I think agent productivity related to, I think, acknowledgement. So one of the metrics, I think, which can be, but we can cover as a part of Okay. either service availability. Yeah. Okay. So yeah, Ashfaq is right. I'm agree with Ashfaq. time to acknowledge, basically. Yeah. Time to acknowledge. Okay. Okay. Shubham had raised his hand. Go ahead, Shubham. NPS, I'm a bit curious. अरे यार, NPS. So I will take pride in saying कि NPS को इंडियन इंडस्ट्री में सबसे पहले शायद 10 लोग लेके आए थे, उसमें से एक मैं था. ओके, सो NPS पे किसी दिन बहुत लंबा बात करेंगे, बट बेसिकली NPS इज नेट प्रमोटर स्कोर. नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है कि मैंने अगर सर्विस दी 10 लोगों को, आप 10 स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, तो मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, तो मैं कितना अच्छा सिखा रहा हूँ, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माय टीचिंग, इसको मेजर करने के लिए, ये मेजर करना बहुत जरूरी है. तो इसको मेजर करने के लिए इंडस्ट्री ने कई मैट्रिक्स व्हाटएवर यू कॉल इट बनाए हैं. राइट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, वॉइस ऑफ कस्टमर, फलाना ढिमकाना. बट इसमें से एक जो है, जो अराउंड 15 साल पहले आया था एज अ कॉन्सेप्ट, इज अ नेट प्रमोटर स्कोर. कि ये 10 लोग हैं ना, 10 लोगों को अशफाक ने सर्वे भेज दिया कि संजीत का सिखाना आज कैसा लगा, फीडबैक दो, फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 5, 1 to 10, व्हाटएवर. आप सब लोगों ने फीडबैक दे दिया, अच्छा फीडबैक दे दिया, चलो ओके. बट NPS क्या कहता है, ये फीडबैक यूजलेस है. राइट, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हाउ मेनी ऑफ यू आर नेट प्रमोटर्स. यानी आप जाके दूसरे स्टूडेंट्स को बोलते हो कि बहुत संजीत बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसकी क्लास में आओ. दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स, दैट इज द नेट प्रमोटर स्कोर. उसको नेट क्यों, प्रमोटर तो समझ गया होगा कि आप 10 लोगों ने मेरा लेक्चर सुना, राइट. मान लीजिए 10 लोगों में से 8 लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया, बट NPS में वो मायने नहीं रखता है. मायने ये रखता है कि अच्छा फीडबैक देके भूल जाते हो, चुप बैठते हो, तो कोई मतलब नहीं है. वो 10 में से एक कोई प्रमोटर बनता है और वो दूसरे 10 स्टूडेंट को जाके बोलता है कि बॉस ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसको क्लास में आओ. सो दैट इज अ प्रमोटर. नेट वर्ड क्या हो गया इसमें, क्योंकि जहां प्रमोटर होंगे वहां डिट्रैक्टर भी होंगे.
आप में से कोई डिट्रैक्टर भी हो सकता है, ओके, भगवान ना करे, पर डिट्रैक्टर भी हो सकता है कि नहीं यार ये लोग तो बहुत टाइम पास करते हैं, हम लोग सीखने आए थे सर्विस नाउ, ये 3 लेक्चर से आईटीएसए में पढ़ा रहे हैं, राइट? शाहरुख says it is like mouth publicity, exactly, but it need not be mouth publicity, right? It can be formal, right? कोई आपको रेफरेंस देता है, कोई आपके गूगल पेज पे जाके रिव्यू लिखता है, कोई, बट या यू अंडरस्टूड शाहरुख, इट इज माउथ पब्लिसिटी, दैट इज नेट प्रमोटर स्कोर। मैं मेरे लाइफ में जितने भी ऑपरेशंस रन करता हूँ, राइट, गए 10 साल से मैं बहुत सारे टीम्स एंड डिपार्टमेंट एंड वो सब रन करता हूँ, मैं खाली इसी में विश्वास रखता हूँ कि नेट प्रमोटर स्कोर कितने हैं। आयान सेज हाउ दैट इज मेजर्ड। आयान, मैं I will schedule something separately to talk to you about net promoter score, because ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड मुझे इतना पसंद है, बट टुडे आई विल नॉट कवर दैट, ठीक है? यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि नेट प्रोमोटर स्कोर में मेजर ये, इट्स अ मेजर ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर आपसे कितना खुश है। वो मेजर इस तरह से करता है कि कौन लोग आपके बारे में खुद होके अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, ओके? It's notoriously difficult to measure, but it is measured. I can give you some examples कि भैया गूगल पे मुझे पॉजिटिव रिव्यूज कितने आ रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट आप अमेजोन पे देखोगे तो वहां पे वो दिखाता है पॉजिटिव रिव्यूज इतने, नेगेटिव रिव्यू इतने, जोमेटो पे पॉजिटिव रिव्यू इतने, नेगेटिव रिव्यू इतने, बराबर है, ठीक है? ऑलराइट, आगे बढ़े। Another concept which we will touch on, time, okay, which we will touch on is introduction to IT support. बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि ITSM, IT सर्विस मैनेजमेंट एंड IT सपोर्ट एक ही चीज है। दे आर नॉट। IT सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ IT सर्विस मैनेजमेंट, ओके? जो पहला जो लास्ट स्लाइड में अशफाक और यूनुस ने बताया था कि टाइम टू एक्नॉलेज, राइट, वो एक मेट्रिक रह गया था। दैट विल बी अ वेरी यूजफुल मेट्रिक फॉर IT सपोर्ट। जब मेरा, जो अशफाक भी एग्जांपल दे रहा था, मेरा डिश टीवी नहीं चल रहा है, मेरा एक्स नहीं चल रहा है, तो आप जो फोन करते हो या किसी तरह आप रीच आउट करते हो सर्विस प्रोवाइडर को, राइट, तो यू आर रीचिंग IT सपोर्ट, IT हेल्प डेस्क। IT हेल्प डेस्क इज नॉट ITSM, it is a part of ITSM. Am I making myself clear? So it is very important for you to understand IT सपोर्ट एक पार्ट है ITSM का, और इसके लिए अलग अलग टीम्स होती हैं। अगली एक स्लाइड आ रही है वेयर वील टॉक अबाउट द डिफरेंट टीम्स। IT सपोर्ट के लिए अलग टीम होती है, लेवल 1 के लिए अलग टीम होती है, लेवल 2 के लिए अलग टीम होती है। ये पहले क्लास में भी डिस्कस किया था हमने, एंड जैसा मैं कह रहा हूं कि आई विल ट्राई एंड रिपीट most of the things in different ways at different times. So here also, again, go through the presentation, look at videos, read documents. समझना कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, क्या समझना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा, यूनुस का, पूजा का और अशफाक का काम है कि ये समझना आपको जरूरी है। नहीं समझ में आया पूछो, घंटों घंटों समझाएंगे, ठीक है? बट लेट्स लुक एट IT सपोर्ट में क्या क्या होता है। नंबर 1, लॉगिंग एंड प्रोसेसिंग सपोर्ट कॉल्स, राइट? मेरा डिश टीवी बंद हो गया या जो भी है, ढेरों एग्जांपल्स होंगे, राइट? प्लानिंग एंड मेंटेनिंग शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, कस्टमर से जो इन टच सबसे ज्यादा क्लोज रहता है, दैट इज IT सपोर्ट। डूइंग ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, राइट? किसी का अकाउंट बनाना है, किसी को पासवर्ड रिसेट करना है, ऑल ऑफ दिस इज IT सपोर्ट। टॉकिंग टू एम्प्लॉइज, क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, सर्वे लेना, ये करना, all of this is a part of IT support. It is the first step, it's the first layer of ITSM. ITSM इससे बहुत ज्यादा है, इससे बहुत डीप है, but this is the first step. इसको फर्स्ट स्टेप को मैंने बाहर निकाल के क्यों हाईलाइट किया है? बिकॉज यू गाइज व्हेन यू एंटर इनटू द इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड आपको इस लेयर से होना होगा।
बट अगर आप ITSM जानते हो, आप समझते हो इसमें क्या क्या है, तो इस लेयर में से आप बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करोगे. You will show yourself as a phenomenal employee to the employer. You will add a lot of value. जो हमने पहले बात किया था, आप ट्रबल शूट अच्छा करोगे, आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, बहुत कुछ अच्छा होगा, आप अलग अलग डायरेक्शन में जा पाओगे. बट रिमेंबर, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है. आईटी सपोर्ट आपको नहीं करना है. यू आर सर्विस नाउ पीपल. जो लोग आईटी सपोर्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट आपने करना है. आई बात समझ में? Anything to add on here, Ashfaq? Otherwise, I'm going to move on. Nothing, Sanjit. I think this is very much clear to me. Okay. I believe I think all of our participants have understood all these concepts at a high level. Okay, Very good. Very good. and these are known to these participants. Shahrukh? Whenever we are saying, please say yes or no. Yeah. So based on that, we'll have to basically explain that specific area. Okay. Okay. So that is our metric. Yes or no. फीडबैक, गाड़ी कैसे चल रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यू वांट मी टू स्पीड अप, स्लो डाउन, एटसेट्रा एटसेट्रा. शाहरुख का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आईटी सपोर्ट की जगह वर्चुअल बॉट्स ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं. अभी तक लिए नहीं है, बट वेरी सून यस. जो फर्स्ट लेयर है आईटी सपोर्ट, ये तो ऑलमोस्ट एआई और बॉट्स ले लेंगे. Service desk is the same thing. Support desk, help desk, service desk, in my opinion, are the same thing. ठीक है. That's another reason, भाई लोग, इस लेयर पे अटके मत रहो ज्यादा. इस लेयर को यूज करके अंदर घुसो और जल्दी से अंदर घुस जाओ. ठीक है. Let's come to IT support levels. ये फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी, बट it was at a very very टच एंड गो लेवल. खाली हमने बात किया था L1 L2 L3 होता है, ये होता है, सिवियरिटी प्रायोरिटी होता है. इसको थोड़ा विल टेक अनदर लुक एट इट. ठीक है. सो लेवल 0 आज, पहले लेवल 1 होता था, अब लेवल 0 हो गया है. दैट इज इन लाइन विद व्हाट शाहरुख इज आस्किंग. कि किसी ह्यूमन को कांटेक्ट करने से पहले, उसके पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत सारी टिकट्स अगर सॉल्व हो जाए तो ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइडर के लिए बहुत फायदा है. ओके. सो यू हैव वेबसाइट्स, FAQs, टेक्निकल मैनुअल्स, ब्लॉग पोस्ट्स, एंड नाउ बॉट्स एज वेल. ठीक है. देन यू हैव level 1, which is your help desk, service desk and all that, which we saw in the previous slide. तो वो लोग यूजर से बात करते हैं, पासवर्ड रीसेट करते हैं, क्विक फिक्स करते हैं, SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एंड सो फोर्थ. राइट. देन कम्स द सेकंड लेयर, टेक्निकल सपोर्ट. टेक्निकल सपोर्ट, जो लोग, यहाँ पे एक SLA होता है कि हेल्प डेस्क, सर्विस डेस्क में एवरेज टाइम टू हैंडल में भी 3 मिनट्स दिया है, 2 मिनट्स दिया है, 1 मिनट दिया है, व्हाटएवर. उसके अंदर तुमसे सॉल्व नहीं हुआ SOP करके, सो देन इट गोज टू द L2 team, which is typically the technical support team. They have technical knowledge, they can troubleshoot, they can figure out इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या इशू है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है. एंड देन लेवल 3 के लोग जिस चीज पे काम करते हैं उनको उस चीज को क्या कहते हैं? Any ideas? I'm writing some letters. Network issue. Okay. I was looking for more in terms of definition. So level 1, level 2, they will work on incident. No. I mean, can you repeat because you were stuck in between? So. Oh, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. So from where should I repeat?
I was saying level zero. Level zero is what the user does themselves, but user को self help करने के लिए I'm so sorry. Ashfaq, are you there? I'm there. I'm there. I'm there. I'm there. Is my voice Yeah. breaking for everyone? Yes, I think we've lost for a few seconds. Okay, if I'm not wrong. now is it okay? It's okay. It's okay. Okay. So basically I'll recap this quickly. Levels के ऊपर हमने बात की थी, right? First lecture में. So I'm touching that again. Let's go a little bit more into detail and we'll come back to this again and again. Level 0 is self-help. तो इसमें बॉट्स भी आ जाते हैं आजकल, बट अदरवाइज इट इज FAQs, मैनुअल्स, खुद ही जाके यूजर अगर रिजॉल्व कर ले तो मेरा टाइम मैं प्रोवाइडर हूँ, मेरा टाइम बचता है, मेरा कॉस्ट बचता है एंड ऑल दैट. देन कम्स द ट्रेडिशनल लेवल 1 विच इज हेल्प डेस्क. हेल्प डेस्क के लिए इंडस्ट्री में एक टर्म यूज होता है, इट इज कॉल्ड कैच एंड डिस्पैच. ओके, कैच एंड डिस्पैच. टिकट आया, कैच करो, उसको देखो भैया ये क्या है और डिस्पैच करो. इस टीम को दे दो, उस टीम को दे दो. अगर SOP यूज करके सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में. उसके अदरवाइज यू जस्ट कैच एंड यू डिस्पैच, कैच एंड यू डिस्पैच. ओके, देन who do you dispatch it to? You dispatch it to technical support. Technical support are technical people, but they are specialized in one or the other area. It's called towers. कोई नेटवर्क देखता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, कोई और देखता है, कोई और कुछ देखता है. So those are the level 2 people, and level 3 people are experts across an entire area, right? So they will know a bit. They are more or less architects, so they will know multiple areas. They can find root causes and all that. So level 1 and level 2 people work on incidents, and level 3 people work on problem and change. तो ये level 4 क्या हो गया? level 4 जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट का इंसिडेंट हुआ था अभी, पता है, yesterday, level 4. That would have gone to level 4. It was, मैंने पूछा था P1 है, P2 है, P3 है, उसका आंसर ऑलमोस्ट सबने दे दिया था. It was obvious it was P1. बट ये लेवल 4 में गया था. लेवल 4 में क्यों गया बोल रहा हूं मैं? यस शाहरुख, ब्लू स्क्रीन एवरीवेयर. तो P1 तो हो गया, ये तो सबने आंसर कर दिया भाई, है तो P1. अब मैं पूछ रहा हूँ ये L1 था कि L2 था, कहां पे जाके रुका ये? L1 पे तो नहीं रुका, L2 पे तो नहीं रुका, L3 पे तो नहीं रुका, तो L4 पे. L4 मतलब क्या? एनी गेसेस? L4 मतलब क्या? As mentioned in slide, engaging external entities. ठीक है, ओके. सो आई शुड हैव हिडन दैट. सो माइक्रोसॉफ्ट के केस में जो भी प्रॉब्लम था, उनका जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर था एंड ऑल दैट, ओनली दे कुड सॉल्व इट, राइट? अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, राइट, एंड मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं मेरे यहाँ पे देखूंगा L1 में, L2 में, इधर है उधर है. और अगर मालूम पड़ा कि नहीं मेरे माइक में ही प्रॉब्लम है, राइट, तो मुझे L4 ही करना पड़ेगा. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द माइक इनसाइड, क्या है क्या नहीं. तो आई हैव टू गो टू Sennheiser एंड से भाई तुम्हारा माइक खराब हो गया, कुछ करो. दैट इज L4. ठीक. एज यूजुअल, रीड दिस, व्हाट, ये स्लाइड पे वो पढ़ो, इसके बारे में दूसरे मैन्युअल्स में पढ़ो, यूट्यूब में देखो, फिर जब सवाल आएगा तब आंसर करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा. एंड ये एक लर्निंग थ्योरी है कि a student will learn only when the student asks a question. जब तक स्टूडेंट सवाल नहीं पूछेगा तब तक स्टूडेंट सीखता नहीं है. ये पत्थर की लकीर है, इसीलिए मैं सिखा भी नहीं रहा. आप सवाल पूछोगे तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है? ये थोड़ा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आपको अलग लग रहा होगा, बट बिलीव मी, मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है. I'll wait for you to ask questions. I'll tell you only that much जिससे आपके मन में सवाल पैदा हो. जब आप सवाल पूछोगे तो मैं आपको आंसर बताऊंगा. ठीक? ऑलराइट? शाहरुख बात कर रहे हैं. हाँ जी.
ये L2 या L3 क्यों नहीं है ब्लू स्क्रीन वाला इशू? हर ब्लू स्क्रीन वाला इशू L4 नहीं होगा, राइट? बट ये वाला जो हुआ था कल, माइक्रोसॉफ्ट का सारे एयरपोर्ट वगैरह बंद हो गए थे, वो किस लिए हुआ था? वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉब्लम नहीं था। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर उनका कौन था यार, अशफाक, इफ यू नो। CrowdStrike. सॉरी, क्राउड स्ट्राइक, हाँ। तो वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट हैज इनकॉर्पोरेटेड वन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, तो उसके कारण प्रॉब्लम आ रही थी। तो माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट फिक्स इट, वो विंडोज का प्रॉब्लम नहीं था। So basically L4 are related to third party issues. Yes. Yes. In your day-to-day life, in my day-to-day life, L4 is because of the vendor. If I'm doing, go ahead, Ashfaq, go ahead. Yeah, so it's OEM basically. OEM. OEM शायद word प्रोडक्ट समझ में सपोर्ट नहीं टीम। आया। नहीं, OEM मींस प्रोडक्ट सपोर्ट टीम, जिसने प्रोडक्ट बनाया है, तो वो टीम से सपोर्ट जो देते हो मेनली है ना OEM, और there is some issue with this system. So L4 is basically mainly either product support team or their third party. Okay. Appointed party who is going to take care of issues which needs kind of a critical fix. So mainly Yunus can explain that to you. Okay, Sanjit, I think yeah, Sanjit is back again. If none of our basically ServiceNow team is able to fix the issue, it goes to OEMs, it goes to product company who has developed this product, or it goes to basically a team of experts which has been appointed by product company. That might be a third party. Okay, that might be a company who has developed the product. एक तो कंपनी खुद सपोर्ट करती है, उनके पास L4 का टीम रहता है, वो प्रोडक्ट रिलेटेड बग्स रहते हैं, प्रोडक्ट में कुछ इश्यूज है, करेक्ट? तो आपको सिंपल चीजें बताता हूँ, जैसे आपका एक व्हीकल, गाड़ी का ही प्रॉब्लम ले लो। जब गाड़ी का L1, L2, L3 का एग्जांपल देता हूँ, आप चौक नाके पे जाओगे, कोई एक मिस्त्री रहेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है, इसका है ना क्लच में प्रॉब्लम है, करेक्ट? गाड़ी बार बार गियर स्लिप हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे, इफ यू आर यूजिंग व्हीकल, करेक्ट? या एनीथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, देन इफ स्टिल दैट प्रॉब्लम परसिस्ट, ओके, वो खोलेगा क्लच, फिर लगा देगा, इट गोज टू बेसिकली OEM सर्विस प्रोवाइडर, जो बोलते हैं हम, है ना, उसका कंपनी का सर्विस पार्टनर, करेक्ट? तो आपका समझ लो बजाज का व्हीकल है, तो आप बजाज के सर्विस पार्टनर के पास जाओगे, गली वाला जो मैकेनिक है उससे हट के उधर जाओगे। अगर वो भी अटेम्प्ट करता है, मीन्स वो भी देखता है, वो भी कुछ है ना मॉडिफिकेशन करके या जो भी सर्विसिंग या वो रोलिंग करना होगा वो कर लेगा, उसके बाद में भी अगर प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे गो टू बेसिकली बजाज इटसेल्फ, जो बजाज के इंजीनियर्स है, करेक्ट? उसको ये लोग ये प्रॉब्लम भेज देते हैं, दे कम एंड विजिट। अगर वो वारंटी में है प्रोडक्ट और आउट ऑफ वारंटी, दैट डजंट मैटर, दे विल चार्ज सेपरेटली, करेक्ट? बट देन जो प्रॉब्लम आपके लोकल मैकेनिक से नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम जाता है आपका कंपनी के सर्विस स्टेशन पे या सर्विस पार्टनर के पास, उससे अगर सॉल्व नहीं होता तो वो जाता है डायरेक्टली बजाज के पास, बजाज के इंजीनियर के पास, एंड दैट्स अ L4 टीम इन अ नटशेल। संजीत, आर यू देयर? Yeah, I'm here. Yes, Ashfaq, Yeah. I agree with So, you. yeah, so this is what a L4 in real world, and you can relate it to that. Yeah. So are you clear about L4 now? Yes. I need yes or no, guys. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay, great. Good. Sir, regarding that your mic issue, Yeah. you said it would be raised to an L4.
मतलब सी मैंने मैंने एक ये माइक लगा रखा है, सेनाइजर का माइक है, ठीक है? तो क्या? यू आर नॉट एबल टू हियर मी, सो आई विल, व्हाट विल आई डू कि भैया मैंने बराबर से कनेक्ट किया है कि नहीं, उसको पावर मिल रहा है कि नहीं, उसका आउटपुट बराबर जैक में गया है कि नहीं, उसका एम्पलीफायर बराबर चल रहा है कि नहीं, ये सब मैंने चेक कर लिया, ओके? बट अगर माइक में ही प्रॉब्लम है, द माइक इटसेल्फ इज नॉट वर्किंग, ओके, दैट इज व्हेन आई विल हैव टू गो टू, मतलब कनेक्शंस मैंने जो करना था एज ए यूजर या एज अ प्रोवाइडर, वो सब मैंने सही किया है, उसका कनेक्शन सही किया है, उसका पावर सही किया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन सही किया है, तभी भी नहीं चल रहा है, तो दैट मीन्स कि माइक में ही प्रॉब्लम है। तो फिर वो माइक क्यों नहीं चल रहा है, वो मुझे उठा के सेनाइजर को भेजना पड़ेगा कि भैया देखो तुम्हारे माइक क्यों नहीं चल रहा। Right, right. Got Got it. it? Yeah. Okay. So at the beginning of the lecture I had said कि आज का टॉपिक इज आईटी चेंज मैनेजमेंट, जो लास्ट टाइम हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था। आई होप ये बार भी नहीं रह जाए, बट आई वांट टू क्विकली टच अपॉन वन मोर टॉपिक विच इज आईटी टिकटिंग सिस्टम्स। अगेन ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज मेनी पीपल विल टेल यू कि सर्विस नाउ क्या होता है, सर्विस नाउ होता है हेल्प डेस्क के लिए सिस्टम होता है, या सर्विस नाउ क्या होता है, आईटी टिकटिंग सिस्टम क्या होता है। इट इज द सेम एनालॉजी दैट आई एम यूजिंग फ्रॉम बिफोर कि हेल्प डेस्क, सर्विस डेस्क इज अ पार्ट ऑफ ITSM, but ITSM is not only service desk and help desk, right? ITSM is much bigger, but उसके जो दो इनिशियल कंपोनेंट है जो सबको नजर आते हैं, सबसे इंटरेक्शन होता है, वन इज द सर्विस डेस्क और हेल्प डेस्क एंड द सेकंड पार्ट इज टिकटिंग सिस्टम। हेल्प डेस्क का काम क्या है? टिकट्स कलेक्ट करना, टिकट्स को कैच एंड डिस्पैच करना। सो the ticketing system obviously is a very very important component of ServiceNow, and as administrators I would say आपका 70 से 80 का % काम will be making sure that the tickets are logged properly, tracked properly, measured properly, reported properly, categorized properly, and so on. So although as a depth, the help desk and ticketing system is a small part of ITSM, but it is the most visible part. Rest of the ITSM niche hai. It's like the bottom of the iceberg, and this is the tip of the iceberg. So that is why again you have to realize that it is a ticketing system, और tickets के साथ अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, organizations क्या क्या करना चाहती हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। And as before, go through these slides. These slides are list of things that you need to know, list of things that you need to understand. For knowing that, for understanding that, there is tons of material available. Use that and then ask me questions, and then we will come back and revisit this. With that said, is there anything about IT ticketing system anybody wants to talk about right now, or can we move on? Let's Yes, sir. हाउ डज द टिकटिंग सिस्टम वर्क? असीम, थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा, हाउ डज अ टिकटिंग सिस्टम वर्क। तो हाउ व्हेन अ टिकटिंग सिस्टम वर्क्स, असीम, जब टिकटिंग सिस्टम काम करता है, अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है ना, तो वो नजर ही नहीं आता, ठीक है? या वो इतना सीमलेस होता है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बट अगर वो नहीं चलता है तो बहुत पेन होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी कंपनियों में काम किया है उसमें एक कंपनी छोड़ के बाकी सब में यही प्रॉब्लम था, राइट? मुझे मेरे क्लाइंट ने बुलाया कि अरे हम एक रोल आउट कर रहे हैं, बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप मीटिंग अटेंड करने के लिए लंदन आ जाओ। ठीक है, वो लंदन जाने के लिए मुझे मेरी कंपनी में ट्रैवल डिपार्टमेंट में, मैं तो टिकट नहीं बुक करूंगा, मैं तो वीजा नहीं बुक करूंगा, मैं तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं बुक करूंगा, तो ये सब मुझे
मेरी कंपनी में डिपार्टमेंट है वो करके देगा, राइट? बट उनको मुझे क्या रेज करना पड़ता है? रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है। रिक्वेस्ट क्या हो गया? टिकट हो गया, राइट? वी हैड अंडरस्टूड मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, राइट? ये इंसिडेंट नहीं है, दिस इज नॉट एन इंसिडेंट, बट इट इज स्टिल अ रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट लॉग होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं खाली फोन करके बोल दूं, अरे जो भी उसका नाम है, भाई मेरे लिए एक टिकट बुक कर दे इतने तारीख का, यहाँ से यहाँ और लंदन एंड बैक। आई विल हैव टू रेज अ टिकट इनटू अ सिस्टम। तो उसके अंदर मुझे सारे डिटेल्स बताने पड़ेंगे। इट इज वेरी वेरी पेनफुल। बट इन दैट वन कंपनी दैट आई यूज्ड टू वर्क फॉर, द ticketing system was in the background, right? I simply had to send an email, ट्रैवल डेस्क प्लीज बुक मी दिस टिकट फ्रॉम हियर टू हियर, मेरा ये बजट इतना है, इधर जाना है, ऐसा ऐसा होटल का मेरा ग्रेड है, मेरा ये एलिजिबिलिटी है, दैट्स ऑल। मुझे कहीं सिस्टम में रेमेडी में जाके या सर्विस नाउ में जाके लॉग इन करके पिक दिस ऑप्शन, दिस रेडियो बटन, दैट रेडियो बटन करने की जरूरत नहीं है। पर I don't know if I'm answering your question, Asim. How does the ticketing system work? का आंसर क्या होगा? So, Sanjit, हाँ, let हाँ, me go ahead. let, Go let, ahead, go let ahead. me- Thank you. yeah. Thank you. So basically, he wanted to understand life cycle, correct? So take an example. Sanjit has given an example of basically he's planning to travel to London for some meeting, correct? Customer presentation, whatever it may be. In this case, Sanjit is raising a ticket. That's a service catalog item or service request, correct? That service request has a basically future steps workflow. We can call it as a workflow. Workflow means क्या है कि step 1, Sanjit will raise a service request where service Sanjit is going to put source means कहाँ से travel कर रहा है, कहाँ पे जाएगा, कौन से सिटी में जाएगा, वहां पे होटल कौन सा टाइप का रहेगा, वहां पे क्या क्या सर्विसेज यूज करेगा, वो मोबाइल यूज करेगा, टैक्सी यूज करेगा, खाना होटल का खाएगा, बाहर का खाएगा, करेक्ट? यहाँ से वहां तक जाने के लिए जो कंट्री में जा रहा है वहां पे उसका वीजा है या नहीं है, तो वीजा प्रोसेसिंग के लिए, सो एवरीथिंग विल बी, है ना, दैट इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, करेक्ट? उस फॉर्म में वीजा का एक सेक्शन है, उस फॉर्म में उसका ट्रैवल का एक सेक्शन है जहाँ पे वो एयर ट्रैवल है, तीसरा सेक्शन उसका लोकल ट्रैवल है जो वहां पे टैक्सी यूज करेगा। ये अलग अलग सेक्शन है। यहाँ से वो फॉर्म सबमिट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन जाएगा अलग अलग, पहले जाएगा उसके मैनेजर को, करेक्ट? सो देयर इज अनदर वर्क फ्लो विच बेसिकली goes to which initiated, which will trigger Sanjit, ट्रिगर बिकॉज ऑफ संजीत सर्विस रिक्वेस्ट, करेक्ट? संजीत का जो रिक्वेस्ट है वो सिस्टम में सबमिट करता है। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल के तौर पे घर का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ही ले लो। संजीत का थोड़ा सा ट्रैवल वाला स्टोरी थोड़ा विल कीप इट असाइड बिकॉज आपका घर का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन विल बी बेटर एग्जांपल बिकॉज you'll be able to understand and relate it very well. आपको जब अकाउंट सेटअप करना है या कुछ उसमें चेंजेस करने हैं या कुछ है ना नया ही कनेक्शन ले रहे हो, आप क्या करते हो, आप जाते हो कॉल करते हो कॉल सेंटर को, वो तो वो बोलेगा पहले फॉर्म भरो, करेक्ट? क्या फॉर्म भरो? आपका नाम, पता एंड ब्रॉडबैंड का कनेक्शन कितने जीबी का चाहिए, प्रीपेड चाहिए, पोस्टपेड चाहिए, पोस्टपेड में क्या कनेक्शन क्या स्पीड चाहिए, 40 Mbps चाहिए, 80 Mbps चाहिए, 100 Mbps चाहिए, 200 Mbps चाहिए, 150 Mbps चाहिए, मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए, साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए। you'll submit all that detail. Once that you'll submit that request, okay, आपको एक SMS आ जाएगा कि you have been requested for this service. फिर नेक्स्ट स्टेज इज आपका उनका इंटरनल मैकेनिज्म है, मीन्स वो रिक्वेस्ट जाएगा एक कंपनी के ऑफरिंग टीम को या प्रोडक्ट टीम को जो ये प्रोडक्ट का स्पेसिफिक है ना सर्विसेज देखता है। उसके बाद में इंटरनली वो फ्लो होता रहेगा एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, फाइनली वो सर्विस रिक्वेस्ट जाएगा एक आपका टीम को जो लोकल सपोर्ट टीम है आपका। वो लोकल सपोर्ट टीम क्या करेगा, वो
इंस्पेक्शन के लिए आपके इधर घर पे आदमी भेजे. Sorry, Sanjit, I'm taking little long. Okay, and this is very much No, no, important for them go to. ahead. When a question Yeah, when a question has been asked, it has to be answered because that is the time the yeah, student learns. exactly. Yeah, exactly. Then it will go to basically either जो जिनका प्रोडक्ट है या उनका पार्टनर के पास. तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ब्रॉडबैंड के केसेस में क्या होता है, थर्ड पार्टी रहता है जो लोकल वेंडर रहता है. खुद एयरटेल या खुद रिलायंस या खुद बीएसएनएल के लोग होते नहीं, उनके लिए सर्विस पार्टनर रहते हैं. ये रिक्वेस्ट उनके पास जाता है. ओके, वो रिक्वेस्ट इनिशिएट होने के बाद वो आके पहला काम करता है कि फिजिबल है कि नहीं. वो आके देखेगा तुम्हारे इधर केबलिंग के लिए जगह किधर है, कहाँ से केबल आएगा, लास्ट कनेक्शन किधर दिया है. करेक्ट. वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करता है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ साइकिल. ये क्रिकेट लाइफ साइकिल, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर. ठीक है. फिर उसके बाद में दे विल कंफर्म दैट है ना, वी कैन इंस्टॉल अ ब्रॉडबैंड फॉर, है ना. तो while doing this he will do the due diligence. आपका मॉडर्न है नहीं है. करेक्ट. देन एक टिकट है, जस्ट एक सिंपल सर्विस रिक्वेस्ट विल ओपन मेनी, है ना, अदर, है ना, टिकट्स, स्मॉल टिकट्स. करेक्ट. तो वो जब आएगा, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाएगा वापस कंपनी के पास. कंपनी फिर कंफर्मेशन दे देगा कि लेट्स इंस्टॉल. करेक्ट. इंस्टॉलेशन आपका होने के बाद there is another ticket which will be created, which is for user account, and that user account means आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ब्रॉडबैंड. करेक्ट. हर एक कनेक्शन के पीछे एक पैरामीटर रहता है. हर एक प्रोसेस वर्कफ्लो के बीच में एक पैरामीटर, जो संजीत ने बात किया, वो इट माइट बी मैट्रिक्स और इट माइट बी अ पैरामीटर, है ना. तो वो यूजर अकाउंट पासवर्ड दिया जाएगा. देन देयर विल बी अ एक्टिवेशन प्रोसेस. तो यूजर एक्टिवेशन प्रोसेस, वो एक्टिवेशन से रिलेटेड आपके सर्विसेज टैग रहेगी. जैसे आपका 50 Mbps का कनेक्शन 100 है, 200 Mbps. करेक्ट. एंड देन वंस ऑल हैज बीन डन, कि आपका केबलिंग हो गया, टेस्टेड केबलिंग, गिवन यूजर नेम पासवर्ड. करेक्ट. एक्टिवेशन होना, ये पूरा होने के बाद वो टिकट फाइनली, once you confirm everything is working, you said that, है ना, everything is working, then from their side, their team will close this installation ticket. So that, अभी समझा ये वर्कफ्लो क्या है. It starts with you and ends with you in case of service request. In case of service request क्या होता है कि आप स्टार्ट आपसे करते हो, आप इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो, एंड बेसिकली क्लोज भी आपसे होता है. उसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं. सो आप जैसे सबमिट करते हो तो इंटरनली फिर वो कंपनी के पास जाता है. कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट को होके ये आपके घर तक आता है. घर या मीन्स आप अभी समझ लो, मैंने ब्रॉडबैंड का एग्जांपल दिया, उसके जगह पे दूसरा कुछ है सर्विसेज, तो वो अलग रहेगा वर्कफ्लो. करेक्ट. बट एट द एंड ऑफ द डे सर्विस रिक्वेस्ट क्या होता है, आपका स्टार्ट भी आपसे होता है, एंड भी आपसे होता है. और एंड में संजीत ने जो बोला, एक पैरामीटर जो है मेट्रिसेस है, वो एनपीएस है. करेक्ट. उससे रिलेटेड एक पैरामीटर उसमें रहता है, वो रहता है सीसैट, कस्टमर सीसैट. जब भी सर्विस रिक्वेस्ट क्लोज होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, वो सर्विस आपको पूछता है, कैन यू जस्ट गिव अ बेसिकली, है ना, फीडबैक. करेक्ट. तो वो एक पार्ट, प्रोसेस का पार्ट है. तो इज इट क्लियर नाउ? तो ये अभी संजीत ने जो दिखाया कि एक इनिशिएट हुआ है, फिर वो सिस्टम में फिजिबिलिटी चेक हुआ है, देन इट गोज टू बेसिकली इन शेड्यूल कि कब हो रहा है, देन इट गोज टू बेसिकली, है ना, एग्जीक्यूशन फेज, देन ये रिपोर्ट है कि ये हो गया है, एंड देन पैसा जो संजीत बोल रहा है. करेक्ट. एंड इट इज देन गोइंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल, ऑन गोइंग बेसिस जो भी है. So everything is basically tracked. Everything, you might not see that all steps in front of you. The reason why आपको क्या दिखता है कि आपने सर्विस रिक्वेस्ट भेज करने के बाद कंपनी से कॉल आता है, कंपनी से कॉल आने के बाद वो आदमी भेजता है आपके घर पे विजिबिलिटी के लिए, फिर इंस्टॉलेशन करता है, इंस्टॉलेशन के बाद एक्टिवेशन के लिए आपको एक कॉल आता है, एसएमएस आता है, और एक्टिवेशन होने के बाद आप स्टार्ट करते हो सर्विस यूज करने के लिए. करेक्ट. बट इसके पीछे वाला जो स्टोरी है, दैट स्टोरी और दैट, है ना, is that workflow is configured in ServiceNow, and that is internally taken care by that service provider or product company. Is it clear? Yes or no? I need a basically yes from Asim said yes. all of you. Said yes. Yeah, Asim, yes, but other participants as well. So if you have any queries, just let us know. If I'm able to
answer as okay. Okay, Sanjit, Okay, तो over to you. And इस just before moving to next topic, इंसिडेंट मैनेजमेंट में अगर सर्विस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट ये में ये वर्कफ्लो इनिशिएट होता है यूजर से और क्लोज भी होता है यूजर से, इंसिडेंट मैनेजमेंट ये वर्कफ्लो कंप्लीटली अलग है. विल टच अपॉन दैट एरिया. again, Incident can be raised by end user, cannot be. It can be automated. It can be identified during monitoring, proactive monitoring, or it can be basically system driven. So we'll touch upon that separately. Let's move to next topic. one last point before moving on from here. Whatever अशफाक ने अभी जो भी बताया, टिकटिंग सिस्टम में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. टिकटिंग सिस्टम इज द फ्रंट डेस्क, फ्रंट हाउस, फ्रंट ऑफ द हाउस सिस्टम. ये टकाटक होना चाहिए, नहीं तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है. एनपीएस की जगह तो आपको डिट्रैक्टर ही डिट्रैक्टर मिलेंगे. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी होने वाली है, बिकॉज सर्विस नाउ जो टिकटिंग सिस्टम के लिए यूज होगा उसको सेटअप आप करने वाले हो. आपने सेटअप सही नहीं किया, आपने सेटअप गलत किया, राइट? तो कस्टमर फ्रस्ट्रेट होगा एंड सारी प्रॉब्लम होगी. सो दिस इज अगेन द रीजन व्हाई वी आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दिस. सेट आपको क्या करना है? आपको सर्विस नाउ सेटअप करना है. सर्विस नाउ क्या करेगा? टिकट हैंडल करेगा. बट सर्विस नाउ तो टूल है, राइट? वो वही करेगा जो आपने सेटअप किया है. ठीक है. सो मूविंग ऑन, चेंज मैनेजमेंट जो लास्ट टाइम रह गया था कि इंसिडेंट हो गया, बार बार हो रहा है, फिर उसको प्रॉब्लम टिकट में कन्वर्ट किया, उसका रूट कॉज एनालिसिस हुआ, फिर लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि नहीं इसको चेंज करना पड़ेगा या इसका सोल्यूशन ये है, उसको ऐसे करेंगे. तो चेंज के फिर 3 टाइप होते हैं, राइट? नाउ नॉर्मली मैं हमेशा कह रहा हूं अभी तक इस लेक्चर में कि स्लाइड पढ़ लेना, बाद में क्वेश्चन पूछना. बट ऑन दिस वन आई वांट टू स्पेंड अ लिटिल बिट मोर टाइम बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट. तो 3 तरह के चेंज है: स्टैंडर्ड, इमरजेंसी एंड नॉर्मल. उसमें से सबसे इजी टू अंडरस्टैंड एंड सबसे रेयर है इमरजेंसी चेंज. इमरजेंसी चेंज मतलब आई एम श्योर माइक्रोसॉफ्ट में जो कल परसों हुआ था उसमें इमरजेंसी चेंज, पहले तो वो L4 में गया, बट L4 में जाके इमरजेंसी चेंज हुआ होगा सब जगह, करेक्ट? सब एयरपोर्ट पे, सब टर्मिनल्स पे, सब जगह, हर सर्वर पे पैचिंग हुआ होगा जब कुछ हुआ होगा. तो दैट इज इमरजेंसी चेंज. अशफाक, गो अहेड. This is a very good example. This is a very good example, guys. Okay. And what happens in this case, and this is kind of a case study for all of you. I need some responses, some understanding from your side. Okay. What happened? Just go, you will see a lot of videos on YouTube at this moment. And at least I'm expecting some story around you, around it from all of you in as an assignment for today. The reason why this was a kind of a result of standard change, frankly speaking. Whatever situation has happened, it was a part of standard change. And if you can see that, and Sanjit is going to explain that, those are pre-authorized changes. Means for that, there is no separate change approval required. They have rolled out one basically patch. Okay, it went wrong, and it became a disaster. And basically standard changes are basically changes which kind of are approved. Doesn't need a separate approval, and change management is a very big process. I think whoever is in IT at this moment, they will understand. So those are low risk change, but how low risk change basically can be a disastrous. Okay, that is one of the examples, and that will change basically some of the approaches being used in IT industry. Sanjay, just I'm telling you, this is going to open a new chapter, Sanjay, in change management area. Correct? So whatever, yeah. So anyways, so Sanjay, over to you. Yeah. No, in fact, thanks for pointing out. So
I was not going to put it the way you did. This was a standard change which caused a problem, right? I was all along saying कि यार ये this led to an emergency change. बट यहां तक हम पहुंचे कैसे? जैसे अशफाक ने बताया ये स्टैंडर्ड चेंज हो गया. ओके, ये आपके कंप्यूटर पे भी या आपके फोन पे भी साल में 2-3 बार होता होगा. ओके, सैमसंग हैज रिलीज्ड अ न्यू अपडेट, डू यू वांट टू अपग्रेड द फोन नाउ? हम बिना सोचे समझे यस कर देते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने भी ज्यादा कुछ सोचे बिना प्री ऑथोराइज चेंज है, हाँ भैया यस कर दिया, अपडेट हो गया सारा कुछ, और फेल हो गया. फेल हो गया तो स्टैंडर्ड चेंज बिकेम एन इमरजेंसी चेंज, राइट? तो इमरजेंसी चेंज में इट इज एक्चुअली इवन मोर डेंजरस. ये प्री ऑथोराइज था, यहां पे तो इसने बाईपास ही कर दिया, राइट? ग्रुप पीयर रिव्यू, भाई इमरजेंसी है, कुछ तो करो, राइट? ये तोड़ो, ये फोड़ो, यहाँ पे बैंडेज बांधो, यहाँ पे प्लास्टर लगाओ, कुछ तो करो फटाफट. सो दैट इज योर इमरजेंसी चेंज. ओके, ये जो एक डायग्राम यहाँ पे, ये 3 डायग्राम्स है ना, ये ऊपर ऊपर से देखने में आपको बहुत सिमिलर लगेंगे, राइट? बट अगर आप उसको क्लोजली देखो, so what is the biggest difference in these 3 diagrams? Okay, somebody, I mean, apart from Ashfaq and Yunus, if somebody can tell me what is the biggest difference in these 3 diagrams, then they have understood the 3 types of change. And anybody who can give me that one big difference in तीनों में difference क्या है तीनों डायग्राम में, उसके घर में मैं एक आइसक्रीम का पार्टी पैक भेजूंगा. या शुभम? Go ahead. So in the standard change model, there is no authorization. ओके, बट वो सब में कॉमन नहीं है ना ऑथराइजेशन. आई एम सेइंग व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन ऑल द 3? यू आर राइट, योर आंसर इज करेक्ट, बट स्टिल नॉट आइसक्रीम. ऑथराइजेशन, ऑथराइज तो दोनों है में है ना, इमरजेंसी में भी है, नॉर्मल में भी ऑथराइजेशन तो है. आई एम सेइंग देयर इज वन थिंग which is very very different in all the 3. शाहरुख, इमरजेंसी में डिफरेंस है. इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है देखें. ओके, क्या डिफरेंस है शाहरुख इमरजेंसी में? हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, शाहरुख से. इमरजेंसी में हायर अथॉरिटी से लेना पड़ता है. एक मिनट यार मेरा. ओके, सो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो ये डिस्कशन हम लोग, आई डोंट नो, not all of, many of you are not old enough to remember this, but अगली किस्त में देखेंगे हम लोग. but I'll go to Ayan. Ayan, आप बोल रहे थे क्या, what is the difference? So in the standard change model, there is no need to get authorized. In the standard change model, authorization नहीं है. Okay, that is correct. That is what Ashfaq said. It is pre-authorized. Very good. Okay. Okay. So you're right, but this is still not the ice cream answer that I was expecting. And don't think I'm trying to save on sending you an ice cream. I would love to send you ice cream, but वो अगली किस्त में देखेंगे. Okay, you will have the slides. I'll send them on like last time. YouTube पे वीडियो पोस्ट कर दूंगा, assignments और slides WhatsApp में डाल दूंगा. And then let's come back to this tomorrow. Before we go, I don't know if you love this part or you hate this part. This is the assignment that I had created before the lecture. During the lecture, again, Ashfaq created 1 or 2 assignments. वो भी मैं WhatsApp में डाल दूंगा. But this is the set assignment that I would like you to complete. So answer क्या है? नहीं, मैं कल बताऊंगा. Oh.
This is an assignment. This is an assignment. So आइसक्रीम you have आइसक्रीम to चाहिए, आइसक्रीम चाहिए तो सोच के आओ। correct. ठीक है। सो लास्ट टाइम जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसमें मैंने ये स्कोरिंग क्राइटेरिया नहीं दिया था, बहुत ही ऊपर वाले लेवल पे दिया था कि बोनस पॉइंट इसके लिए मिलेगा, उसके लिए मिलेगा। सो स्लोली स्लोली आई वांट यू टू गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ लर्निंग, स्ट्रक्चर्ड हैबिट ऑफ लर्निंग आल्सो, राइट? अगेन जस्ट बिकॉज मैं खुसट बुड्ढा हूं इसलिए ऐसा करता हूं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ लर्निंग थ्योरी बिहाइंड दिस। लर्निंग थ्योरी पे मैं 2 मिनट नहीं 1 मिनट बात करता हूं, तो कि आपको भी समझ में आए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं और अशफाक एंड यूनस एंड पूजा मैडम हियर, हम लोग टीचर नहीं हैं, हम लोग मेंटर हैं और हम लोग कोच हैं। टीचर, मेंटर, कोच, इसमें फर्क होता है। ओके, तो ये फर्क ठीक है, अगली बार बताऊंगा टीचर, मेंटर, कोच में फर्क होता है। बट मेंटर और कोच जो होता है वो मॉनिटर करता है अपने स्टूडेंट्स को कि ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक जा रहा है कि नहीं, राइट? टीचर सिखाता है, मेंटर और कोच में सिखाना ज्यादा नहीं होता है, मॉनिटरिंग ज्यादा होता है। यू इमेजिन विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट उनके भी कोच होते हैं। कोच क्यों होते हैं? बिकॉज विराट कोहली नेट में जाके प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस कर करके विल ही बिकम अ बेटर प्लेयर? नो, अनलेस देयर इज अ कोच हु इज वॉचिंग। तो इट इज कॉल्ड डायरेक्टेड प्रैक्टिस। खाली प्रैक्टिस करने से कोई बेटर प्लेयर नहीं बनता है, इट हैज टू बी डायरेक्टेड प्रैक्टिस। तो कोच विराट कोहली को बोलेगा भैया नेक्स्ट मैच के पहले वॉच आउट योर फ्रंट फुट, फ्रंट फुट के ऊपर वेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, अभी तू 100 बॉल खेल और मैं देखूंगा तेरा फ्रंट फुट कैसे जा रहा है। सो दैट इज व्हाट अ मेंटर एंड अ कोच डज। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर मी टू गेट इनटू दिस हैबिट कि हर असाइनमेंट के साथ एक स्कोरिंग गाइडलाइन भी होनी चाहिए। तो जब आप असाइनमेंट करोगे तो आप उसके साथ ये देखो कि एक्सपेक्टेशन क्या है, कोच की एक्सपेक्टेशन क्या है। ऑलराइट, सो दिस इज द असाइनमेंट। again it will be posted on the WhatsApp group. Please go try and do the assignment to the best of your ability. I will repeat, correct results are not expected, great efforts are required. ठीक है? With that, I'll end with everything that I wanted to say. I am still here like always. और कितना भी टाइम एक्सटेंड करना है, as long as you guys are here, I'm here. So Asim says, can you explain a few points? Go ahead, Asim. My pleasure. अच्छा, स्टैंडर्ड चेंज का क्वेश्चन था आपको, Asim, is that right? Yes, sir. Okay. Ashfaq, can I ask you to explain that? Yeah, sure. Thank you. Yeah, so basically, again, this is a question for you. You're expecting an answer, but still, I'll give my best. Okay. Standard change is a change which doesn't need an approval, as Sanjeet said, correct? And I've given how standard change can become a disastrous. Okay. So standard change, one of the example for you is a regular update coming to your mobile, correct? And everybody is waiting for, if you are using a Android, you're waiting for Android 14, 15. On monthly basis, there are updates, correct? And those updates are what? Improvement. आप देखोगे कैमरा में कोई नया फिल्टर आया है, कैमरे में कोई चेंजेस आ गए है ना। अगर आपके मोबाइल के कुछ एडिशनल फीचर्स है जहाँ पे आपका फेस अनलॉक है या फिंगरप्रिंट अनलॉक है या कोई एआई वाला मॉड्यूल है, तो बेसिकली दीज आर typical standard changes, correct? Regular updates, enhancement, small enhancement, not big enhancement, correct? Those are part of your standard changes. Monthly updates, correct? Coming to your Windows desktop, laptops, or monthly updates for your mobile, monthly updates for your tabs, correct? Those are the examples of standard changes. And as
Sanjeev have explained it on a basically this slide. This doesn't need any approvals. Does it mean that there will not be any testing done? It's not the case. There is a testing done, but it doesn't go through your CAB. So there is a basically ownership from the product team who is going to take care of all testing irrespective of standard, non-standard changes, both, correct? And typically standard changes are rolled out by basically OEMs or product companies, correct? Non-standard changes can be done by anybody, third party, anyone, correct? But standard changes typically has been done by either OEM product company or their appointed partners, L4 partners, correct? Yeah. So ये मैंने एक सर्कल किया डायग्राम पे, वो देख लो, that is called release. Release management, correct, release management, and this is again closely associated, and it is again so, and this is a monthly release or weekly release, quarterly release, correct? And you can see, you can go to Microsoft website, you'll see every month Microsoft is releasing one small update, correct? Or sometimes on a weekly basis also you'll see some security updates, which is very critical, simple, minor, correct? Whatever it may be. But those are basically regular updates, regular enhancements, kind of changes. Those are standard changes, correct? Have you understood it? आपको समझा? Asim, anybody has any questions related to? Okay, ठीक है, great. And we'll deep dive into basically standard change process. Okay, it is just kind of at a high level some of the points which is covered. Okay, but you can see frequently implemented with repeatable steps, because any enhancement or any releases or patch updates has a same set of activity. There is nothing new, correct? But those are basically still exist, and basically there is a confidence on the team who is working on the standard changes. And in normal changes, there are many basically teams which discuss a lot of things, and once they agree, then only normal changes will be executed. Anyways, thanks, Sanjit. I think we if I'm going to answer that, it will take another 10-15 minutes, and I'll explain entire stuff. So I wanted to keep it a little light over here. Absolutely. Only reason, individual has to go through some of the videos, some of the content, okay, understand by their own. Yeah, no, absolutely. And I and Sanjit wanted to have it, okay. असीम, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं उसमें चीजें रिपीट होती रहेंगी. ओके, मैंने पहले लेक्चर में किसी को क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी येलो फ्लावर्स डिड यू सी. तो उसका मतलब ये है या उसका मकसद ये है कि आपका अटेंशन उस चीज पे फोकस किया जाए. अगर मैं आपको पूछूं हाउ मेनी येलो फ्लावर्स डिड यू सी टुडे, यू विल से आई डोंट नो, बिकॉज आपका ध्यान ही नहीं था. पर अब मैंने जब आपका ध्यान इसके ऊपर आकर्षित कर दिया है, राइट, तो आपको हर जगह ये चीजें नजर आएंगी. अब अगर आप ये सर्विस नाउ या आईटीएसएम के क्लास में नहीं आते, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का इंसिडेंट जो होता उसको देखने का आपका नजरिया अलग होता. अब नजरिया अलग हो गया है. सो दैट इज हाउ ऑल ऑफ अस विल लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे सब कुछ समझ में आ जाए, ये रिपीट होता रहेगा. आर यू ऑल राइट, असीम? Yes, sir. Okay, and please take the assignments seriously. Assignments are the most important part of your learning. ठीक है, मेरा और अशफाक का एंड यूनुस का एंड पूजा मैडम का यहाँ पे हमारा जॉब ये है, मेन जॉब ये है कि इतना सारा मटेरियल, इतना सारा चीजें अवेलेबल है, उसमें से आपको कौन सी चीज पे नजर रखनी है, कौन सा चीज सीखना है, ये बताना हमारा सबसे बड़ा काम है, राइट? उसके बाद आपके जितने क्वेश्चंस हो उतने आंसर करना, ये हमारा दूसरा बड़ा काम, ठीक है? तो प्लीज टेक असाइनमेंट सीरियसली. आई एंजॉयड the response of the assignment from the first lecture, right? I'm not commenting on whether answers अच्छे थे, खराब थे, कुछ अच्छे थे, कुछ नहीं थे. That is immaterial. आप आंसर्स दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है. जिनके आंसर्स अच्छे थे उनको मैं फीडबैक दूंगा, जिनके नहीं थे उनको भी फीडबैक दूंगा, राइट?
and we will keep on improving. All right. Yes, sir. Good. At the close of every service request, as Ashfaq said, feedback दे दो भैया, अच्छा था बुरा था आज का lecture, just today's lecture, so that I am also on track. Good, bad, ugly. It was good. Thank you very much. ठीक It है. was good, sir. Thank you. So see you all tomorrow, same time. Cheers. Cheers, guys. Have a nice day. Yeah. Bye, sir. Cheers. Bye bye. Bye bye.